so the meeting has commenced and the recording has commenced too. Let us begin with today's session. Sir, could you please come near to the microphone? Actually, you are not audible. Is it better now? Is it better now? Am I audible? No, sir. Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, wonderful. Now, if you would have seen the topic of today's talk, it is emotional intelligence and its relevance in the virtual world. So, before I begin, a couple of things. First of all, I would want to congratulate you all because you have faced a very uncertain time and yet you are here. तो एक बार सब लोग अपने माइक्रोफोन्स अनम्यूट कर लें and give yourself a big applause. Wonderful job, guys. You are here. It's easy. I know that. And so take this time to म्यूट कैसे कर रहे हैं? okay. Now see, पहला लेक्चर होता है ना, ये एक बहुत ही यूनिक टाइम होता है बिकॉज इसमें आपको बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि आपको जो आपके सामने जो हैं जो आपसे बात कर रहे हैं वो कौन है क्या है. सो ओके, first of all, the first thing that I would want you to know about me is that I am an author and इस लॉकडाउन के टाइम पे मेरी एक जो लेटेस्ट बुक आई है दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट्स ऑफ अ बेटर लाइफ. ये Sir, Sir, you are muted. Sir, your voice is not audible. okay, I don't know, there is some reason why it gets muted again and again, but I hope it is better now. So this is the book that is my latest release, and as I was saying, keeping in mind the current generation, I've kept it pretty precise, just 64 pages in length, and it's a guide to happiness and meaning in life. Okay, now after this, the other thing that I want you to know about me is that I'm a speaker and trainer. A lot of you will be meeting me in various different capacities. आपके placements वगैरह के लिए जो preparations होंगे उनमें I'll be helping you out. But the job that I recognize most with, जो चीज मैं अपने बारे में सबसे important मानता हूं, that is that I would like to believe I am an igniter. Now, what does it mean? It means that I like to prompt thinking, which leads to new ideas and concepts. That is something that I'm most passionate about. How to change our thinking patterns, how to change our mindsets, and how to aim for things that we believed were not possible. So that's about me. Besides this, I've had corporate experience. I've worked with Indian Army. I've worked with Google, and more recently, I'm working on Excuse me, sir. mental health and wellness. Yes, Hello, excuse me, sir. please. Sir, somebody has been removing me. I have been removed twice from the meeting. Could you please take control in your hands of the meeting? Then let me see who has the controls. Everybody else is just. Lakshman sir? Yeah, this side Rupam. Yes, Okay. Yes, sir. yes, ma'am. You can go to the meeting option in the in yours that you have created and do it only me in the meeting option. Oh. Let me see, ma'am. If what do I do? I Go to the meeting option. yes. Yeah, there when you will click the meeting option, you will find three options. That is everyone. Then last only me. You have to do only me. Ma'am, what I'll do is shall I make you the organizer so that you can do it? I am not very sure how to do it. Okay, you can, sir. I will do it. No, otherwise, sir, it's okay because I am having another class. Extremely sorry. Okay.
Otherwise, I will do one thing, sir. Manage permissions. Okay. Okay. Just I think I figured it out. Let me Okay. just. Yeah, I think we are done. We are set. Okay, sir. Okay, ma'am. Thank you so much for the assistance. Okay, so can you see the screen now? Can you see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Let Yes, us sir. resume. Now, given the topic that we have today, I have a question here now. What determines success? सक्सेसफुल आप होंगे लाइफ में, नहीं होंगे लाइफ में, या आपका करियर ग्राफ कैसे क्या जाएगा, इसका क्या डिटर्मिनेंट है? What do you think determines success in life? So hard Please work. feel free to speak up. Sir, efforts. Okay, So the effort that we put in. Sir, knowledge about the Sir, particular knowledge. field. knowledge about things. Okay, Sir, luck. all these Sir, are correct. Sir, consistency. dedication. Sir, hard work and Consistency, dedication. Sir, hard dedication. work, dedication. Okay. Now, for a long time, it was believed that IQ, intelligence quotient, was the sufficient determinant of success. आपको ये slides दिख रहे हैं? Are these slides visible? No, sir. 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 Okay. Maheshwari, sir, your screen is visible, but the PPT is not visible. I think PPT is not uploaded. Just a second. Otherwise, your screen share is happened. So Yeah. you can. I Yeah, guess- now it's visible, sir. Okay, so for a long time, it was believed that IQ or intelligence quotient was the sufficient determinant of success in life. आप अगर analytical हैं, आपकी reasoning skills अगर अच्छी हैं, तो it was the belief that you will be largely success in your life. But then एक concept और आया, success के अलावा there was another thing that we needed to understand. That was what determines happiness. A lot of people who were very good workers, वो अपने काम में बहुत अच्छे थे, but जब उनका higher level promotion हुआ, when they started dealing with people, समझ में आया कि not a lot of people were being successful. And even though people who were successful, they found that they were not happy enough. तो समझ में आया कि there is something else that we need to focus on. There is something greater than intelligence quotient, and that needs to be addressed. Then people started working on emotional intelligence. So आज का जो टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड, अगर आप इस टॉपिक को देखें तो आपको इसमें क्या क्या इंडिपेंडेंट थीम्स दिख रही हैं. इफ यू लुक एट दिस टॉपिक, आपको क्या क्या इंडिपेंडेंट थीम्स दिख रही हैं? Sir, intelligence. ओके, Emotions. what इमोशंस? ओके,
World. Virtuality. वर्चुअलिटी ओके, वर्चुअल वर्ल्ड ओके। नाउ मैं एक एक करके ये जो अलग अलग थीम्स हैं इनको डायसेक्ट करता जाऊंगा एंड लेट मी नो इफ यू कैन कनेक्ट द डॉट्स देन। सो लेट अस बिगिन विद अ फ्यू इमोजीज। ये इमोजी देख के क्या दिमाग में आ रहा है? Happiness. Blushing. So China's. So Happiness. Okay. Happiness okay. What about this? Do not stop in. Sadness. So Sad. sadness. So Not sadness. satisfied. Failure. Not Okay, satisfied. Tired. satisfied okay, Disappointment. disappointment okay। ये देख के क्या समझ में आ रहा है? Anger. Anger. So anger. Anger. Okay, interesting। गुस्सा okay। ये Overacting. Happy. Enthusiasm. Excited. enthusiasm, excitement Anxiety. Excited. Laughing. okay, interesting, very good। so ये सब actually क्या थे? Emotions. These were the emotions that you pointed out। now आपको intuitively पता है emotions क्या हैं, but कभी आपने इसको अलग से as a term सोचा है कि emotions होते क्या हैं? आपको intuitively पता है। देखो मैंने आपको अभी 4 emojis दिखाए एंड आप लोगों को intuitively पता है कि इनका क्या मतलब है। But let us understand at a deeper level what are emotions? क्या है emotions? क्या होते हैं emotions? Anybody? What are emotions? The So to show feelings. how. Yukta, please speak Ways up. to express ourselves. Sir, temporary feelings. Temporary Ways to feelings, express ourselves. ways to express ourselves. Yes, sir. Okay. Anybody else? Feeling derived from any circumstance or any situation. Okay, wonderful. Who's speaking? Please mention your name. Vasumaran. Vasu. Yes, sir. Okay, Vasu. Very interesting. देखिए बेसिकली क्या है, आपके जो भी इमोशंस है ना, दे आर रिएक्शंस। आप जिन्हें इमोशंस कहते हैं वो एक्चुअली आपके रिएक्शंस हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड रिएक्शंस कैसे हो सकते हैं। रिएक्शंस या तो आपके इंटरनल स्टिमुलाई से आ सकते हैं, आपके अंदर से आ सकते हैं। किन चीजों से? आपके थॉट्स, आपकी मेमोरीज। आपके मन में कोई बात आई और उस बात से आपका कोई इमोशन ट्रिगर हो गया। आपको मान लीजिए Sir, you're not clearly audible. ओके, सो द इंटरनल स्टिमुलाई, ये जो इंटरनल स्टिमुलाई की बात है, इसमें मैं कह रहा हूं कि कई बार आपके इमोशंस कहां से आते हैं? कुछ थॉट्स आपके आए, आपको कोई सबमिशन करना है, कोई क्लास अटेंड करनी है, कोई प्रेजेंटेशन देना है, कोई एग्जाम है। अगर आप उसके बारे में सोच रहे हैं, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो शायद आप एक्साइटेड होंगे या ऑप्टिमिस्टिक होंगे। अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आप सडनली शायद स्केयर्ड हो जाएंगे। या फिर इमोशंस आ सकती हैं आपके मेमोरीज से। आपको अपने लाइफ में कोई अच्छा पीरियड, कोई अच्छा मोमेंट याद आया, यू फील हैप्पी। इफ इट्स अ सैड मेमोरी, maybe you feel sad or disgusted or angry। तो ये तो हो गए आपके इंटरनल स्टिमुलाई जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। बट इमोशंस बाहर से भी आ सकते हैं। कभी कभी किसी को देख के एकदम से गुस्सा आता है, ऐसा हुआ है आपके साथ? या किसी को देख के एकदम से बहुत अच्छा लगता है? Have you felt that emotion? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. या कोई पर्टिकुलर प्लेस Yes, या sir. इवेंट है, कोई प्लेस आपके लिए Yes, sir. फॉन्ड मेमोरीज रखती है, कोई प्लेस ऐसी है जो आपको सैडन करती है या इट मेक्स यू एंग्री, या कोई इवेंट है पर्टिकुलर। तो देखिए ये जो है ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करते हैं। सो इमोशंस हमारे अंदर से भी आ सकते हैं, इमोशंस बाहर से भी आ सकते हैं, एक्सटर्नल इवेंट से भी आ सकते हैं। ये है
basic concept of emotion. It is basically a reaction. Now, ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, अगर ये इमोशंस हमारे रिस्पॉन्सेस हैं, तो रिस्पॉन्सेस कैसे बने? रिस्पॉन्सेस टिपिकली या तो आपकी कंडीशनिंग से बनेंगे. आप जिस सेटअप में पले बड़े हैं, जो आपकी स्कूलिंग है, आपका फ्रेंड सर्कल है, पीयर ग्रुप है, ये सारी चीजें आपके कंडीशनिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं और ये सारी चीजें आपके रिस्पॉन्स को बहुत डीपली शेयर करते हैं. ओके, बहुत सारे लोग आई एम श्योर इस क्लास में वेजिटेरियंस होंगे. डू वी हैव वेजिटेरियंस इन द क्लास? ओके, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. okay. What is your thought about, let us say, non-veg food? आपके इमोशंस क्या हैं when we talk about non-veg food? जो वेजिटेरियंस हैं, ये मेरा क्वेश्चन उनसे है. क्या है आपका आपके इमोशंस टुवर्ड्स नॉन-वेज फूड? Sir, that's probably a sin. ओके, ठीक है. और okay, let's now ask the non-vegetarians, what is your perception, yeah, what is your view about non-veg food? Bolo non-vegetarians in the class. So it's great. It's great. Okay, so you see, the way we grow up, we make certain images of things, people, events. So आपकी conditioning, आपके perception, ये सब जो हैं, ये आपके emotions को determine करते हैं. But सबसे ज्यादा आप अगर किसी चीज पे rely करते हैं, तो वो है आपके past experiences. अगर आप किसी पर्सन से मिले, या आपने कुछ काम किया, या आप किसी जगह पे गए और उसके बाद चीजें अच्छी हुई, तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली उन चीजों को लेके पॉजिटिव हो जाएंगे. और अगर आपके रिजल्ट्स या आपकी जो सिचुएशन है वो एडवर्स हुई, तो आपके इमोशंस उन चीजों को लेके नेगेटिव हो जाएंगे. तो हमारी कंडीशनिंग, हमारे परसेप्शंस, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, all of these contribute to the formation of our reaction, which is nothing but basically our emotional disposition. Now, अब मैं एक स्टेप और आगे जाता हूं. अब मैं इमोशंस के साथ जो दूसरा वर्ड था वो ज्वाइन करता हूं. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस. तो अगेन मुझे कोई अभी डेफिनेशन नहीं चाहिए, कोई मुझे फॉर्मल इसका एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए. आप इंट्यूटिवली बताइए, आपके हिसाब से इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज इमोशनल इंटेलिजेंस? Right choices at right time. Right choices at right time. Okay. In what sense? Balancing your emotions. But to understand the emotion of the other person, what he wants or what he is exactly up to emotionally. ठीक है, I take that. Balancing your emotions. Balancing your emotions. Okay. Anybody else? Wonderful. Anybody else? So to be able to identify and manipulate emotions of other persons. Oh, wonderful. देखो, मैनिपुलेट वर्ड यहाँ पे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैनिपुलेट वर्ड यूज करते ही सब गड़बड़ हो जाएगा. और ये बात भी बता दूं मैं, जो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल होते हैं, अगर वो एथिकल नहीं है तो वो बहुत डेंजरस हो जाते हैं. बिकॉज जैसा कि वासु ने अभी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट बात कही कि जो इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होते हैं, they can actually manipulate behavior, they can actually manipulate the responses of other people. So बस एक बार मैं तुम्हें डेफिनेशन बताऊंगा, इसके बाद चाहो तो इस डेफिनेशन को भूल जाना. हम लोगों के लिए डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. सो इसकी एक जो क्लासिकल डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो क्या है? The ability to monitor
one's own and other people's emotions. पहली बात, ठीक है, monitor to discriminate between different emotions and label them appropriately, मतलब identify करना क्या क्या है, and to use emotional information to guide thinking and behavior. तो थर्ड पॉइंट है अपना रिस्पॉन्स सेट करना, ठीक है। एक बार तुम लोगों ने अगर इसे अच्छी तरह से देख लिया हो तो बताओ मेरे को, देन आई विल मूव अहेड एंड आई विल डील ईच ऑफ दीज एस्पेक्ट्स वन बाय वन। कैन आई मूव अहेड? कैन आई मूव अहेड? ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट। पहली बात तो आप ये समझिए, इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट जस्ट अबाउट आवरसेल्व्स। ये केवल हमारी बात नहीं है, ये हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों से हम इंटरैक्ट करते हैं, जितने भी लोगों को हम टच करते हैं अपने लाइफ में, या जितने भी लोगों पे हमारा इंपैक्ट पड़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इज अबाउट ऑल ऑफ देम। इट इज अबाउट everyone around us. It is about us and the environment around us. सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये बात समझनी है। नाउ जैसा कि मैंने कहा था, इसका पहला जो एस्पेक्ट है दैट इज मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग द इमोशंस ऑफ आवरसेल्व्स एंड द अदर्स। अच्छा, एक बात ऑनेस्टली बताना, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि आपको पता ही नहीं, आप बात करते करते कभी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, या बात करते करते आप कई बार बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, और बाकी लोग पॉइंट आउट करते हैं कि आपकी आवाज, आपका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस? कितने लोगों के साथ हुआ ऐसा? पेज नंबर 31। ओके, कई लोग हैंड रेज कर रहे हैं। आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे को ऑडियो सिग्नल दोगे। कितने लोगों के साथ हुआ है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या आपके साथ हुआ है कभी, मतलब कौन सा आपने इमोशन फील किया है, आपको पता ही नहीं चला और आप उस इमोशनल स्टेट में पहुंच गए? कौन सा इमोशनल स्टेट आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? Excitement part. Mostly excitement. Wonderful. Who speaking? Anger. Okay, Lakshit. Okay, so ये बहुत कॉमनली हमारे साथ प्रॉब्लम होती है कि हम लोग ये अवेयर ही नहीं होते कि हमारी इमोशनल स्टेट चेंज हो रही है या चेंज हो चुकी है, और इसी तरह से कई बार हम ये भी अवेयर नहीं हो पाते कि जो हमारे सामने पर्सन है, हमारी बातों से या हमारे एक्शन से उसकी इमोशनल स्टेट चेंज हो गई है। आपने कभी एक्सपीरियंस किया कि आपके बात करते करते सामने वाले पर्सन के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो चेंज हो रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो रही है? ये भी आपने नोटिस किया होगा। हैव यू नोटिस दिस? ओके, यस सर। Yes, sir. पहली चीज तो मैं जब इमोशंस को मॉनिटर करने की बात कर रहा हूं, उसमें मैं कह रहा हूं अवेयरनेस लाइए कि कब ये शिफ्ट आ रहा है। ओके, नाउ अवेयरनेस आ गई कि ठीक है हम इमोशनल स्टेट में हैं, बट अभी काम पूरा नहीं हुआ। अभी हमें यह जानना है वो इमोशनल स्टेट है कौन सी। वी नीड टू बी एबल टू डिस्टिंग्विश एंड लेबल आवर इमोशंस एंड अदर पर्सन्स इमोशंस। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइडेंटिफिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इमोशंस। Has anybody ever told you कि आप गुस्से में हो और आप कह रहे हो नहीं नहीं मेरे को गुस्सा नहीं आ रहा? ऐसा हुआ है? या Yes, sir. आप कह रहे हो कि you are angry and the other person is simply refusing, नहीं मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा? हुआ है ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. या Sir, it depends upon the people around us. okay, Lakshit, right? Yes, sir. But Lakshit, are we being truthful if we are not identifying
एंड एक्सेप्टिंग आवर इमोशंस। क्या हम एक्चुअली इफेक्टिव हो सकते हैं अपने इंटरेक्शंस में? आपने कितने लोगों ने हल्क की मूवीज देखी हैं, अवेंजर सीरीज में या अदरवाइज? यस सर। देखी हैं ये Yes. कैरेक्टर ब्रूस बैनर? ओके, नाउ आपको अगर याद हो शुरू के जो एवेंजर्स की जो मूवीज आई थी उसमें देयर वाज अ रिफ्ट बिटवीन बैनर एंड हल्क। ये लोग दोनों पर्सनालिटीज थी वो एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रही थी। और अगर आपको बाद की मूवीज का याद हो तो दे एक्सेप्टेड ईच अदर एंड दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर। माय पॉइंट इज, अगर आप अपनी इमोशनल स्टेट प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे और आइडेंटिफाई अगर कर भी रहे हो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर एक इंटरनल रिफ्ट है। देयर आर टू आइडेंटिटीज दैट आर एग्जिस्टिंग इन यू एंड दैट कैन नॉट बी अ गुड थिंग। सो द थिंग इज कि बहुत बार हमें लगता है हमारी इमोशनल स्टेट कुछ और है लेकिन होती कुछ और है। आप में से कई लोगों ने ये फील किया होगा, कई बार आप गुस्सा होते हो लेकिन वो गुस्सा एक्चुअली गुस्सा नहीं है। ईदर यू आर सैड और यू आर डिसअपॉइंटेड और यू फील बिट्रेड एंड वो जो निकल के सामने आ रहा है उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो गुस्से के फॉर्म में आता है। आई एम श्योर लॉट ऑफ यू विल रिलेट टू दिस। आप एक्साइटेड हो लेकिन आपका एक्साइटमेंट आपको कई बार कंफ्यूज करता है। आप सरप्राइज्ड हो और कई बार जो आपका सरप्राइज है वो वरीड लुक में निकल के आता है। सो ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बट करेक्ट आइडेंटिफिकेशन is very important and then the acceptance of that particular emotion. You would be surprised to know कि as many as 26 or 27 distinct emotions exist. अलग अलग मॉडल आप देखेंगे तो आपको अलग अलग नंबर बताया जाएगा बट अप टू 26-27 इमोशंस जो हैं वो वेल आइडेंटिफाइड हैं। और अगर आप कुछ देखना चाहते हैं उनमें से, अगर आप ये कुछ इमोशंस देखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया है। आप देखिए रेज, एंगर, अनोयंस। मतलब अनोयंस जो है वो थोड़ा माइल्ड है, उससे ज्यादा रेज है, उससे ज्यादा एंगर है, उससे ज्यादा रेज है। ग्रीफ, सैडनेस, पेंसिवनेस, लोदिंग, डिसगस्ट, बोर्डम। तो जो ये इनर व्हील है ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं और जो आउटर मोस्ट व्हील है ये जो है ये माइल्ड इमोशंस हैं। और बीच बीच में आप जैसे कंटेम्प्ट देख रहे हैं, अग्रेसिवनेस देख रहे हैं, कई बार ये मिक्सचर ऑफ इमोशंस है। सो देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस दैट यू कैन फील। और आप जितना अच्छे तरह से अपने इमोशंस को समझ पाएंगे उतना अच्छी तरह से आप इसको हैंडल कर पाएंगे और आप रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। नाउ आपने अपने और दूसरों के इमोशंस जो हैं उनको पहले अवेयर हो गए कि हाँ वो इमोशंस हैं, आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया। अब इमोशनल इंटेलिजेंस का अगला काम है, इमोशनल इंटेलिजेंस आपको गाइड करता है कि आगे क्या करना है। नाउ अगेन अ क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत ज्यादा खुशी में कुछ ऐसा बोल दिया जो बाद में जाके प्रॉब्लम हुई? एंड माइंड यू, यहां पे मैं केवल गुस्से की बात नहीं कर रहा, कई बार खुशी में भी आप जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं आप ऐसे प्रोमिसेस, ऐसे कमिटमेंट्स कर देते हैं जो बाद में आप पूरे नहीं कर पाते। तो टेल मी, हैव इट हैपेंड टू यू कि आपने गुस्से में या खुशी में कुछ ऐसी बात बोल दी, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स कर दिए जो बाद में जाके प्रॉब्लम हुए? हैव यू गाइस फेल्ट इट? एनीबॉडी?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. lot of Yes, sir. क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्या हुआ अपने साथ ऐसा कुछ, कोई इलैबोरेट करना चाहेगा? सर मैंने फादर को कह दिया था कि फर्स्ट आऊंगा और आया ही नहीं। ओके ठीक है, इतना डिवास्टेटिंग या डैमेजिंग नहीं था, बट फिर भी ठीक है, इट माइट हैव लेड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। और कोई anybody else who's willing to share? Anybody else? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ इवेंट होता है और इवेंट के बाद इवेंट के खत्म होते ही इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं? Of you react immediately. So for example, कि किसी ने कुछ बोला आपको और आपने सोचने से के लिए टाइम भी नहीं लिया, उसके फिनिश करते ही आपने अपना रिस्पॉन्स दे दिया। Me, sir. so Okay. there are many events such Me, like sir. ओके नो, देखिए इमोशनल इंटेलिजेंस से एक फायदा और होगा, आपके जो रिस्पॉन्सेज है ना, आप उन्हें बेटर प्लान कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट बात भी सीखेंगे, दैट नॉट एवरीथिंग डिजर्व्स अ रिस्पॉन्स। सो विद इमोशनल इंटेलिजेंस you will be able to come up with appropriate response. कहां पे आयरन मैन बनना है, कहां पे थॉर बनना है, आप ये समझ पाएंगे। और कहीं कहीं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये जो नीड टू रिस्पॉन्ड है ना, हमें हमारे लाइफ में कुछ हुआ है और हमें उसके रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ करना है, ये जो कंपल्शन है, काफी हद तक आपका ये कंपल्शन भी खत्म हो जाएगा अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बिकॉज जब आप रिएक्ट कर रहे हैं बिना सोचे समझे, बिना कंट्रोल के, आप मोस्ट लाइकली बैड चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए, आप अपने लिए एडवर्स सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं और आप अपनी एनर्जी को कई बार वेस्ट कर रहे हैं। ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा कि आपकी किसी के साथ कहा सुनी हुई लड़ाई हुई और पता चला वो पर्सन जो था वो तो उसको करके भूल भी गया, लेकिन आपके लिए रिस्पॉन्ड करने की जो नीड है वो इतनी ज्यादा हाई है कि वो इवेंट आपके दिमाग में चले जा रहा है। नाउ द अदर पर्सन इज ऑलरेडी फ्री ऑफ दैट इवेंट, बट यू आर अ प्रिजनर ऑफ दैट मेमोरी और ऑफ दैट इवेंट। तो with emotional intelligence, we would also develop the capability to appropriately respond and if needed not respond at all. अगर सामने वाले का गुस्सा नहीं है, अगर हम में इमोशनल इंटेलिजेंस है, हम समझ पा रहे हैं द अदर पर्सन इज जस्ट स्केयर्ड, आप उसके गुस्से के बदले में गुस्सा नहीं करेंगे, आप शायद उसे प्यार से समझाएंगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे और जो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी आप उसको मिटिगेट कर देंगे, आप उसको एमिकेबली सॉर्ट कर लेंगे। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। योर रिस्पॉन्सेस बिकम बेटर एंड मोर कंट्रोल। नाउ ठीक है, हमने समझ लिया इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। अब देखें इसका इंपैक्ट क्या है, क्या होगा अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट होंगे, इसका आपके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा। जैसा कि मैंने कहा, सबसे पहला तो इंपैक्ट ये है कि गैप बिटवीन इवेंट एंड रिएक्शन, आप इसको बढ़ा पाएंगे। आप जो बिल्कुल इंस्टिंक्टिवली रिएक्शन देते थे, कुछ इवेंट हुआ और हमने इमीडिएटली रिएक्शन दे दिया विदाउट वेइंग इट कि क्या इतना रिएक्शन जरूरी भी है या क्या ऐसा रिएक्शन हमारे लिए सही है। हम अब इसको वे कर पाएंगे, दूसरे पर्सन के इमोशंस को भी हम समझ पाएंगे और उसके ट्रू इमोशंस जो हैं, द इमोशन बिहाइंड द डिस्प्लेड इमोशन, उसे भी हम समझ पाएंगे और अकॉर्डिंगली हम रिएक्ट करेंगे। इससे क्या होगा, दिस विल लीड टू लेसर मिसअंडरस्टैंडिंग्स। अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि जो अदर पर्सन है
वो एंग्री नहीं है, वो सैड है, या आप समझ पा रहे हैं कि अभी आप जरूरत से ज्यादा हैप्पी हैं या ओवर एक्साइटेड हैं, और अभी आप जो भी कमिटमेंट कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, आप कमिटमेंट करने से रुक जाएंगे, आगे जाके मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाएंगी, आपके लिए ऑकवर्ड सिचुएशंस जो बनती हैं वो ऑकवर्ड सिचुएशंस बनना बंद हो जाएंगी। ये इंपैक्ट है। और फर्दर you will experience higher motivation. How can you experience higher motivation with emotional intelligence? Anybody? How can you experience higher motivation with emotional intelligence? Motivation और emotional intelligence का क्या connection? Anybody? ठीक है guess? कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो, बट क्या समझ में आता है, क्या लग रहा है? Anybody? Sir, I just want to try. Sir, if we talk to someone and the other person is get influenced by our thinking, and तो वो हमारी बातों से मोटिवेट, मतलब वो एक तरीके से हमारी बातों से मोटिवेट होगा, तो हमारे को भी कॉन्फिडेंस आएगा खुद के ऊपर, एंड हम और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे कि हाँ हम दूसरों को से बात कर सकें। Okay, what's your name? श्वेता। Okay, thank you very much, wonderful. यहाँ पे इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, इन्होंने मोटिवेशन को दो अलग अलग कंपोनेंट में ब्रेक किया, which is brilliant. देखिए, हायर मोटिवेशन, पहली बात तो औरों की बात करें, जब आप उनके इमोशंस को सही से हैंडल करेंगे तो उनमें ज्यादा मोटिवेशन होगा आपके लिए काम करने का, आपके गोल्स की तरफ वर्क करने का, which is a brilliant thing. Not only that, अगर आप उनको मोटिवेट कर पाएंगे तो आपको भी अपना काम करने में ज्यादा मोटिवेशन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप अपनी इमोशंस को सही से समझ पाएंगे, अगर आपको पता है कि एक्चुअली व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू सैड, व्हाट आर योर ट्रिगर्स, आप उन्हें इफेक्टिवली यूज कर पाएंगे अपने आप को पुश करने के लिए, अपने आप को डिसिप्लिन रखने के लिए, अपने आप को बेटर बनाने के लिए। Having said that, एक बार फिर से जो आज के हमारे लेक्चर का टॉपिक था वो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रेलेवेंस इन द वर्चुअल वर्ल्ड। मैंने कहा था इसके अलग अलग पार्ट है, मैंने इमोशंस देख लिया, इमोशनल इंटेलिजेंस देख लिया, लेकिन अभी तक जो इसका लास्ट पार्ट था हमने उसके बारे में बात नहीं करी है। आज हम इसकी बात खास तौर पे क्यों कर रहे हैं? So tell me, पिछले 6 महीने में क्या अलग हो गया है? अगर मैं पिछले 6-7 महीने की बात करूं, what has changed? What has changed in the past 6-7 months? Day-to-day routine of people have changed. Their sleeping cycle has changed. Okay. So whole thing has changed. Whole thing has changed. Okay. So social have changed. The mode of interaction are affected. So studies became online. Okay. Well, who was that? Studies More became socializing. Lakshay sir. Their Okay. health is the first priority. Okay, health is the first priority. Now, this more social you might distancing find and socializing. more social distancing. Okay. Some of you might find this counterintuitive. अगर आप देखो तो पिछले 3-4 महीने में एक दूसरे से कनेक्ट करने के नए नए तरीके आ गए, बट बिलीव मी पीपल व्हेन आई से दिस, आई थिंक पिछले 6-7 महीने में हम बहुत ही ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। बहुत सारे लोग, उनका जो सोशल सर्कल था, उनका जो सपोर्ट सिस्टम था, वो अपने आप को उससे कटा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो अपने आप को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। दे आर फीलिंग लोनली एंड दिस इज समथिंग विच इज अ ग्रेट थ्रेट टू योर हैप्पीनेस एंड योर मेंटल हेल्थ। मानते हो इस बात को? डू यू गाइस एग्री विद दिस? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Okay.
सो आज आज की क्लास की बात करो, आज की अगर मैं क्लास की बात करूं तो बड़ा लिमिटेशन है, या तो मैं आपको ये स्लाइड्स दिखा पा रहा हूं या आप लोगों को मैं अपना फेस दिखा पा रहा हूं। एंड मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप में से कोई भी, किसी का भी फेस मुझे नहीं दिख रहा। What has happened to non-verbal communication? क्या हुआ है non-verbal communication के लिए? अगर आज आप देखो, there is practically zero non-verbal communication between us in this class. अगर normally environment होता, आप मेरे सामने होते, मैं आपके सामने होता, मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख पाता, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज देख पाते, मुझे आपको देख के समझ में आता कि आपको कितना समझ में आ रही है मेरी बात, या कहां कहां आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है, कौन कितना इंटरेस्टेड है, कौन इंटरेस्टेड नहीं है। मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपकी जो आपका आई कांटेक्ट है वो सब देख के बहुत कुछ समझ लेता। लेकिन आज प्रॉब्लम ये है, ये सब नहीं है। जिस चीज को हमने फॉर ग्रांटेड लिया था, हमने विजिबिलिटी को, कि हम एक दूसरे के आमने सामने होंगे, हम एक दूसरे से मिलेंगे, जिस चीज को हमने फॉर ग्रांटेड लिया था, आज वो चीज खत्म हो गई है। मैं आपको देख पाऊंगा, कब देख पाऊंगा, आई हैव नो आइडिया। फर्दर कम्युनिकेशन बैरियर्स क्रिएट हो गए हैं। कभी आवाज सही से नहीं आ रही, कभी वीडियो सही से नहीं आ रहा, और अगर आपकी आवाज आ भी रही है, उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो टोन है, जरूरी नहीं है वो एक्यूरेटली आए। नेटवर्क कैसा है, स्पीकर कैसा है, माइक कैसा है, इतनी सारी चीजें मेरे और आपके बीच में आ रही हैं, या आपके और आपके बैचमेट्स के बीच में आ रही हैं। इन सबसे क्या होता है? ऑल दीज क्रिएट greater chances of misunderstandings, and that is why जितनी इंपॉर्टेंस इमोशनल इंटेलिजेंस की आज है, इतनी शायद पहले कभी भी नहीं थी। आज अगर आप बहुत ही ज्यादा अवेयर नहीं है, अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉशियस नहीं है अपने इमोशंस को लेके और दूसरे के इमोशंस को लेके, गड़बड़ी होने का चांस बहुत ज्यादा हो गया है। Not only that, सोशल स्किल्स के ऊपर क्या असर पड़ा है इस वर्चुअल वर्ल्ड में? सोशल स्किल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ा है, बताइए। What impact has it created on our social skills? Anybody? Sir, confidence level has gone down. मतलब लोग जैसे फेस टू फेस बात नहीं करते लोगों से, तो उनको वो एक्टिविटी जब तक वो करेंगे नहीं, तो उनका जो स्टेज फियर होता है वो नहीं निकल सकता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आप जो हैं, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं, आपके कोर्स का एक बहुत बड़ा पार्ट था इंटरेक्टिंग विद पीपल, गिविंग प्रेजेंटेशंस, एंड एज शी राइटली पॉइंटेड, स्टेज फियर कम करना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इंप्रूव करना। क्या ये सब हो रहा है? आज आप लोग अगर मेरे से बात भी कर रहे हो, आप केवल अपने माइक पे बोल रहे हो, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस वगैरह जो हैं, या आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में जाओगे, आपको ये सब जरूरत पड़ेगी। तो सोशल स्किल्स को लेके भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नॉट जस्ट दैट, कम्युनिटी बिल्डिंग। पहले अगर आपको ग्रुप प्रेजेंटेशन देना था, 4-5 लोग साथ खड़े होते, वो आपस में मिलके एक प्रेजेंटेशन बनाते, एक साथ इन्वॉल्व होके। अब कोई अपने घर पे बना रहा है, कोई अपने घर पे बना रहा है, एक जने ने उसको लेके एक साथ कर दिया। क्या नेगोशिएशन, क्या वर्क अलॉटमेंट, कुछ नहीं है। There is absolutely no community building. The common sense of purpose, हमें मिलके ये काम करना है, ये चीज ही खत्म हो गई है। फर्दर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आप लोग साथ में काम करते हो, ग्रुप इमोशंस। जो टीम मैच जीतती है, आप उस टीम की कॉमन बॉडी लैंग्वेज देखा करो। आजकल आईपीएल चल रहे हैं, ओके, हर मैच के बाद पूरी टीम जो जीतती है
उसका एक अलग ग्रुप इमोशन होता है, और उसी तरह से जो टीम हारती है उसका अलग ग्रुप इमोशन होता है। आपको याद है इंडिया ने जब लास्ट अभी वर्ल्ड कप जीता था, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट टाइम जब इंडिया ने अपना जो वनडे का लास्ट वर्ल्ड कप जीता था? कितने लोगों को याद है? यस सर, याद है। याद है? Yes, sir. देखा था किस तरह से सचिन को कंधे पे उठा के पूरा जो स्टेडियम था उसका चक्कर काटा गया था, किस तरह से इंडियन फ्लैग लेके पूरी टीम ने चक्कर लगाया था। ग्रुप इमोशन, ये जो चीज है ये आज बहुत मुश्किल हो गई, क्योंकि क्या होता है इमोशंस में एक और बहुत चीज होती है, वी मिरर इमोशंस। जब मैं आपको देखता हूं तो आपके इमोशंस को मिरर करता हूं, आप जब मुझे देखते हो आप मेरे इमोशंस को मिरर करते हो। अभी मेरा जो एक्साइटमेंट लेवल है, मेरा जो इन्वॉल्वमेंट है इस लेक्चर को देने में आपको विजिबल नहीं है। तो मेरी एनर्जी जो है, मैं जो भी अपनी एनर्जी, जो भी वाइब्स लेके आया हूं, मैं आपको वो नहीं ट्रांसमिट कर पा रहा हूं। दैट इज वाई आपको अपने आप इस एनर्जी को कैच करना और अपने मोटिवेशन को हाई रखना, इसके तरीके ढूंढने होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेस माइंडसेट कनेक्ट। कुछ समझ में आ रहा है मैं इसमें क्या बात कर रहा हूं? प्लेस माइंडसेट कनेक्ट। ओके, टेल मी समथिंग, कितने लोग ये लेक्चर अपने बेडरूम्स में बैठ के देख रहे हैं? ओके सर। ओके, अच्छा, एंड प्लीज बी ऑनेस्ट, कितने लोग अपने पजामे या शॉर्ट्स में हैं अभी? मी सर। ओके सर। देखो नॉर्मली क्या होता था, जब आप क्लास में आते, आप एक फॉर्मल ड्रेस में आते थे, ठीक है, आप टेबल चेयर पे बैठते थे और आपका एक माइंडसेट होता था, जैसे ही आप कॉलेज में घुसे, यू आर हेयर फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। आपकी इमोशनल स्टेट भी जो होती थी अकॉर्डिंगली कंडीशन हो जाती थी। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आप उसी घर में जहां पे हो, उसी घर में आप पढ़ भी रहे हो, उसी घर में आप अपने मील्स भी ले रहे हो, और उसी घर में बाद में आप रेस्ट कर रहे हो या स्लीप अपनी जो है वो भी ले रहे हो। पहले क्या होता था, आप क्लासरूम में बैठे हो, आप पढ़ने के लिए बैठे हो, आप कैंटीन जा रहे हो, वहां पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ सोशलाइज कर रहे हो, आप घर जा रहे हो, आप अपने पेरेंट्स, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हो। आपके इमोशंस की वैरायटी जो थी वो ये जगह अपने आप ले आती थी। बट नाउ आप सोशलाइज भी अपने बेडरूम में ही कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ओवर इंटरनेट। आप पढ़ाई भी अपने बेडरूम में कर रहे हो, टीचर्स के साथ, अपने पीयर्स के साथ इन द सेम बेडरूम। और कुछ तो ऐसे भी होंगे जो खाना भी शायद बेडरूम में ही खाते हैं। इसके लिए मुझे आंसर नहीं चाहिए, बट मुझे पता है ऐसे बहुत सारे लोग होंगे। नाउ इस केस में क्या है, एक बहुत बड़ा इशू आता है डिसिप्लिन का। अगर हम में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, हम अलग अलग इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी भूल जाएंगे, या उस कैपेसिटी को हम डेवलप नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज एवर इंपॉर्टेंट इन दिस सिनेरियो। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको डिसिप्लिन चाहिए, और इस समय डिसिप्लिन के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, मोटिवेशन के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी आज से पहले हमने कभी नहीं देखी। हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। एज आई सेड, आई रियली वॉन्ट टू सी यू पीपल, बट मुझे नहीं पता मैं आपको कब देख पाऊंगा या इस सेमेस्टर में हम मिल भी पाएंगे। आई रियली डोंट नो। ऐसी अनसर्टेनिटी में अगर आपको एंजाइटी, फियर, डिप्रेशन, इन सब से बचना है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। जैसे ही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आए, आपको इमीडिएटली अवेयर होना है, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनको रिमूव करना है या हैंडल करना है।
सो पीपल, आज इमोशनल इंटेलिजेंस सक्सेस के लिए नहीं बल्कि सैनिटी के लिए जरूरी है। आज इमोशनल इंटेलिजेंस वर्चुअल वर्ल्ड में केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि आप बेहतर अपना काम कर पाए, बट इसलिए कि आप काम कर पाए। पीपल आर लिटरली लूजिंग देयर माइंड्स। सो दैट इज वाई जो आज का लेक्चर था, इसमें ना सिर्फ मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी, बट ये भी मैं एम्फसाइज करना चाहता हूं कि वर्चुअल वर्ल्ड में इसकी नीड पहले से भी ज्यादा है। नाउ वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, तो आज इतना ही। बस मैं आपको 2 बातें कहूंगा जो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए और हैप्पीनेस के लिए बहुत एसेंशियल है। इन 2 चीजों को समझ जाओगे तो लाइफ रिलेटिवली बहुत आसान हो जाएगी। एंड ये है वो 2 गोल्डन रूल्स फॉर हैप्पीनेस। पहला रूल सानुकी और दूसरा रूल मिट्टी पाओ। अगर ये 2 बातें लाइफ में समझ गए, अगर इनको इंप्लीमेंट करना सीख गए, बिलीव मी, लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। आपकी हैप्पीनेस, आपकी सैनिटी जो है वो बहुत बेटर हो जाएगी। तो ये है लाइफ के 2 गोल्डन रूल, और दिल्ली वालों ने तो इसे शायद काफी हद तक मास्टर कर भी लिया है। सो विद दिस I would like to take your leave. I wish you all the best. Get cracking. And I am Lakshman Maheshwari. Now, we have a couple of minutes. If you have any questions, if you have any doubts, feel free to ask me. Otherwise, we'll wrap up this section with this session. Sir, what can you do to get rid of negative thoughts? See, if you can identify the root of your negative thoughts, again, kaise? By having better awareness and by better identification. आपके जो thoughts आ रहे हैं वो reality से आ रहे हैं या वो unfounded हैं, मतलब उनके पीछे हो सकता है एक genuine rationale हो। अगर वो हो तो आप उस cause पे work करें, और अगर रैशनल नहीं है तो आपके फियर कहां से आ रहे हैं आप ये समझें। ईदर वेज, या तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे या आपको समझ में आ जाएगा, वरी करने का कोई नीड नहीं है, आप उसे छोड़ देंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, एनीबडी एल्स? एनीबडी एल्स? एनी अदर क्वेश्चंस और डाउट्स? डोंट वरी, अगर आपको क्वेश्चंस या डाउट्स आते हैं, हाँ please. Sir, how to change perception about some person if we had bad perception, bad image about him or her? Okay, so now perception आपका कैसे बना? देखिए, एक तो होता है आपका फर्स्ट हैंड परसेप्शन, आपने कोई चीज एक्सपीरियंस करी और उससे आपका परसेप्शन बना। दूसरा होता है सेकेंड हैंड परसेप्शन। नाउ एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा मैं। हमारा जो परसेप्शन है वो पाकिस्तान या पाकिस्तानियों के बारे में जो भी है वो एन मास है ना। हमने एक जो परसेप्शन बनाया हुआ है पाकिस्तान या पीपल फ्रॉम पाकिस्तान, वो अगर मैं बताऊं आपको सेकेंड हैंड परसेप्शन है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली मेट अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान? नाउ टू से दैट सम ऑफ देम आर बैड might be accurate, but to say that all of them are bad, this cannot be accurate. So this is the point that you need to understand. अगर आपका परसेप्शन है वो कैसे बना है, अगर वो सेकेंड हैंड परसेप्शन है, अपने परसेप्शन को वेरीफाई कीजिए, जो आपको बताया गया है, जो आपने सुना है उसको वेरीफाई कीजिए। या अगर फर्स्ट हैंड है, ये इवैल्यूएट करिए कि कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं थी, या अगर सामने वाले से आप बात कर सकते हैं तो ट्राई एंड गेट एन एक्सप्लेनेशन कि उनका जो बिहेवियर था, जैसा था वैसा क्यों था, एंड बिलीव मी, काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम। इफ यू वांट आई कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन। मैम, कैन आई टेक वन लास्ट क्वेश्चन? Yes, yes. Sir, for the attendance, you just download
Because you are the organizer, so you can download the attendance. Okay, ma'am. I'll do that. Yes, One students, last- if you can, yeah, if you want to ask any question, please go ahead. Sir, I just wanted to ask that how emotional intelligence helps us to plan our responses better. Balance. How emotional intelligence can? Could you please repeat the Uh, question? Oh, yes, sir. How emotional intelligence can help us to plan our responses better. See, first of all, you will be able to identify how you are feeling. अगर आप अपने ट्रू इमोशंस आइडेंटिफाई कर पाओगे, पहले बात तो आपके रिस्पॉन्सेस अकॉर्डिंगली आप टेलर कर पाओगे. अगर आपको पता है कि आप गुस्सा नहीं हो, आप डिसअपॉइंटेड हो, तो शायद आप दूसरे के ऊपर लैश आउट करने की बजाय, चीखने चिल्लाने की बजाय उसको शांति से बात कहोगे, तुमने ये किया, मुझे बुरा लगा, ये काम मत करना. अंडरस्टैंड? ठीक है. दूसरा, इसी तरह से अगर आप सामने वाले के इमोशंस को सही तरह से समझ पाओगे और सामने वाला आपके ऊपर चीख रहा है, आप उसे रोक के पूछ सकते हो, आई अंडरस्टैंड यू आर अपसेट, मुझे बताओ हाउ कैन आई मेक इट बेटर. नाउ आप जरा सा सोचो, अगर आपने ऐसे रिएक्ट किया और सामने वाले से ऐसा क्वेश्चन पूछा, डोंट यू थिंक सिचुएशन अपने आप संभल जाएगी? या आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप बड़े बड़े प्लान बना रहे हो जिनको आप बाद में पूरा नहीं कर पाओगे और लोग डिसअपॉइंट होंगे, उससे पहले ही आपको पता है आप ओवर एक्साइटेड हो, आपने कहा अभी नहीं, गिव मी सम टाइम, लेट अस प्लान लेटर. डिसअपॉइंटमेंट्स के या मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, सिंपली बिकॉज आपने सिचुएशन और रिएक्शन के बीच में या इवेंट और रिएक्शन के बीच में थोड़ा टाइम गैप डाल. तो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, sir. A lot. Okay. Thank you so much, sir. Thank you very much, guys. You have been a wonderful audience, and I hope to see you again very soon in classes, most likely. So that's all from my side. Thank you very much. Enjoy your day. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much, you, sir. sir. Sir, please download Thank you, that. sir. Yes, ma'am. Download the attendance. Thank you Yes, so sir. much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you so much, students, for being such nice audience. I Thank you, hope sir. it was very interactive class. Even I have been there in the class, and it was really fruitful class, sir. Even your session has helped me a lot. Thank you Because very much. this current time of this pandemic, because we are working virtually, so this emotional intelligence, its importance is really matters. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, ma'am. Yes, I'll students. stop the recording now. Yes, sir, please. So we can download the